اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہ ذائقہ جو چکھنا ہے تو سب کا الگ الگ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں گئے، اپنے ساتھ 72 نفوس قدسیہ کو لے کر 72 ساتھی کو لے کے گئے، اور ایک مور ایسا آیا کہ ساتھی جو ہے جام شہادت پی رہے ہیں۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کا بھتیجا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے، اے چچا مجھے بھی اجازت دیجئے، ہم بھی میدان میں جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا کہ نہیں تم مت جاؤ، تم حسن کی نشانی ہو۔ امام قاسم بار بار آئے لیکن بار بار منع ہوا۔ اتنے میں امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک تعویذ بندھا ہوا ہے۔ امام قاسم اس تعویذ کو کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ابا حضور یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تحریر کیے تھے، لکھے تھے کہ اے بیٹا قاسم، ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا بھائی مقتل کربلا میں ہوں گے، اس وقت افسوس کہ میں نہیں رہوں گا، تم رہو گے، تم میرے بیٹا ہونے کی ضمانت دینا اور میدان میں اتر کے نانا کی دین کی حفاظت کر لینا اور تم شہید ہو کے جام شہادت پی لینا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا حسین کے پاس وہ تعویذ کھول کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے چچا آج میں آرڈر لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، حکم لے کر کے آپ کے پاس ابھی میں آ رہا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، اے قاسم یہ حکم کس کا ہے، ذرا ہم تو دیکھیں۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے چچا، اب تک تو میدان میں اترنے کے لیے آپ مجھے روکتے رہے، لیکن میرے باپ نے مجھے سند دے کے گیا ہے، یہ میرے باپ نے اس میں لکھا ہے، اے میرے نور نظر لخت جگر، ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا بھائی امام حسین مقتل کربلا میں ہوں گے، افسوس کہ اس دن میں نہیں رہوں گا، اگر تم رہے تو میدان کربلا میں اتر کر میرا بیٹا ہونے کی ضمانت دے دینا اور جام شہادت پی کر کے میرے نانا کی دین کی شریعت کی حفاظت کر لینا، میرے نانا کی دین کو بچا لینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعویذ کو پڑھتے ہیں، اب ارشاد فرماتے ہیں، اے قاسم، اب تو میں تمہیں روک نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے بڑے بھائی کا حکم ہے، انہوں نے لکھا ہے، اب میں تمہیں روک نہیں سکتا ہوں، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، تم وہاں جانے کے لیے کیوں ضد کر رہے ہو، جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا ہے، جہاں جانے کے بعد ان کی لاشیں اٹھا کے لانا پڑ رہا ہے، جہاں پہنچنے کے بعد جہاں لوگ پہنچتے ہیں وہاں گازر مولی کی طرح لوگوں کو کاٹا جاتا ہے، گازر مولی کی طرح لوگ کرتے ہیں، لیکن تم جانا کیوں چاہتے ہو؟ تم یہ بھی جانتے ہو کہ جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، ان کی لاش آئی ہے، تو پھر تم کیسے جانا چاہتے ہو؟ تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ امام قاسم نے فرمایا، اے میرے چچا حسین، میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں، موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ چکھنا سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، یہ چکھنا سب کے لیے برابر نہیں ہوگا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو چکھنا سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ کسی کے لیے شہد سے زیادہ میٹھا ہے تو کسی کے لیے زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہے، جیسا اعمال ویسی موت۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم جو یہاں آئے ہیں، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، غرض سے آئے ہیں۔ یعنی کچھ دن پہلے ہمارے بیچ میں آپ کے سامنے منظور صاحب چلا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، ساتھ میں نماز پڑھا کرتے تھے،
لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ان کی یاد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا کر ایصال ثواب ان کے نام تک پہنچا رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مرحوم کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما اور ان کے گناہ کبائر صغائر کو بھی معاف عطا فرما. میرے دوستو، ہمارے بیچ میں، آپ کے بیچ میں جب کوئی انتقال کرتے ہیں تو کیا ہم لوگ کرتے ہیں؟ کچھ دیر گزرتا ہے کہ اسے نہلاتے ہیں، اور کچھ دیر گزرتا ہے پھر اس کو کفن دیتے ہیں، پھر کچھ دیر گزرتا ہے اس کو جنازے میں رکھتے ہیں، لے کے چلتے ہیں، جنازہ کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ قبر کے حوالے کر دیتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا. جب کوئی انسان انتقال کرتے ہیں نا تو اس کے بغل میں لوگ بیٹھ کے رویا کرتے ہیں. کیوں؟ کہ آخری سفر ہے. آج کے بعد یہ شخص کبھی ہمارے سامنے، آپ کے سامنے جسم کے ساتھ نہیں آئیں گے. آخری سفر ہے. لیکن شاعر کیا کہتے ہیں کہ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا. جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا. جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا. اور اگلا شعر دیکھیں کہ تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو پڑھ کے سنا دینا. اے میرے دوستو، امام حسین کی بارگاہ میں ان کا بھتیجا یعنی امام قاسم کہے تھے، اے میرے چچا، میں تو موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں. تو اے میرے دوستو، آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اے میرے دوستو، سب کا انداز الگ ہوگا. کوئی شہد سے زیادہ اس کو میٹھا سمجھیں گے، کوئی شہد سے زیادہ اس کو میٹھا سمجھیں گے، اور کوئی زہر سے بھی زیادہ کروا سمجھیں گے. اے میرے دوستو، جب کوئی انتقال کر جاتے ہیں ان کے جنازے کو لے کے ہم چلتے ہیں، جب غسل کے لیے ان کو لے کے چلتے ہیں، تخت پہ ان کو رکھتے ہیں اور غسل کے لیے پانی گرم کر دیتے ہیں. اس کے بعد اس انسان کو تخت پہ رکھ دیتے ہیں، اس کے بدن سے کپڑے کو ہٹاتے ہیں، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے عالم میں انسان چیختا ہے کہ اے میرے دوستو، آج تم میرے جسم سے کپڑا اتارتے ہو، آج تم مجھے نہلاؤ گے، لیکن خبردار ایک بات سن لو، آج میں اس دلنچے پہ سویا ہوں، آج میں اس تخت پہ سویا ہوں، کل تمہیں بھی سونا ہوگا. اس لیے تم میرا کپڑا اتارنا تو آرام سے اتارنا، مجھے نہلانا تو آرام سے نہلانا. تم مجھے ہاتھ لگاتے ہو، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی انسان میرے جسم کو چھری سے کاٹتا ہے. یہ ہے موت کی سختی. جب انسان کو ہم نہلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں میت کو، اس وقت میت پکار اٹھتی ہے، اے لوگو جب تم میرا کپڑا نکالتے ہو، اے لوگو یہ وہی انسان ہے جو آج مغرور بن کے گھومتا ہے، آج انسان آخرت کو بھول کے گھومتا ہے دنیا میں. لیکن میرے دوستو، ایک دن اس کے ساتھ بھی ایسا آنے والا ہے، ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے کہ تخت پہ پڑے رہیں گے، اپنا کپڑا بھی اتار نہیں سکتے ہیں، اپنے جسم کو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے دولت مندوں کو
जब उनके जनाजे में मैं शरीक था, उनको नहलाने में मैं शरीक था। उनके मुंह में कभी मक्खी बैठती है, उनके पैर कभी इधर से उधर हो जाता है, कभी उनका मुंह खुल जाता है, कभी आंख खुलती है, लेकिन वो ना आंख बंद कर पाता है, ना मुंह बंद कर पाता है, ना मुंह से मक्खी को हटा पाता है, ना पैर को सीधा कर पाता है। ऐ मेरे दोस्तों, वही इंसान जब दुनिया में जीता था, लोगों के सामने फख्र के साथ जिंदगी गुजारता था, लेकिन आज मर गया है। आज इस दुनिया से रूह निकल गई है जिस्म से। जब जिस्म से रूह परवास कर गई है, मुंह में मक्खी बैठा है, मुंह खुला है, आंख खुली है, हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, लेकिन सीधा करने की ताकत नहीं है। ऐ मेरे दोस्तों, जरा उस मंजिल को याद कीजिए जिस वक्त दलिंचे पे हमको लिटाया जाएगा, आपको लिटाया जाएगा और वो आपके जिस्म में बदन में पानी डालेंगे। उस वक्त मैयत चीखती है, पुकारती है, ऐ लोगों जो गर्म पानी लाके मेरे बदन में डालते हो, जरा उसे चेक कर लो कि वो ठंडा है कि गर्म है, उसको जिस्म में डालने के लायक है कि नहीं है। इसलिए कि तुम पानी डालते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म को कोई फाड़ रहा है। अब वहां से लेके लोग चलते हैं। ये तो मर्द की बात हुई है, मुर्दा मर्दों की। अब औरतों के बारे में भी सुन लीजिए, बात आई है, सुन लीजिए। एक मुर्दे को जब नहलाने के लिए लेके जाते हैं तो क्या करते हैं? कम से कम 2 आदमी तो होते हैं ना, एक नहलाने के लिए, एक साबुन लगाने के लिए, एक पानी डालने के लिए। 2 आदमी कम से कम जरूरी है ताकि आसानी हो गुस्ल दिलाने में। मेरे दोस्तों, एक औरत को जब लेके नहलाने के लिए औरतें पहुंचती है तो वह औरत चीखती है, चिल्लाती है और कहती है, ऐ मेरी सहेलियों, ऐ मेरी बहनों, सुनो, आज तुम मुझे गुस्ल देने के लिए लाई हो, लेकिन एक बात सुन लो कि आज से पहले मेरे जिस्म में किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी थी। आज तुम मुझे भी बचा लेना गैरों से। आज तुम मेरे बदन को खोलने वाले हो, कपड़े को हटाने वाले हो। उस वक्त वह औरत चीखती है और कहती है, ऐ औरतों सुनो, ऐ मेरी सहेलियों सुनो, आज मैं वो औरत हूँ, कल के तारीख में जब मैं चला करती थी, अपने जिस्म के साथ नुमाइश किया करती थी, अपने फख्र के साथ चलती थी, लेकिन आज तो ऐसा जिस्म पड़ा है कि कपड़े को भी मैं खुद नहीं हटा पाती हूँ। तुम हटाने के लिए आई हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि गैर की नजर से मुझे बचाना। ये कौन कहेगी जो दुनिया में बापर्दा जिंदगी गुजारी है? एक कहावत है पहले जमाने का, ये कौन कहेगी? वो औरत है जिसके साथ पर्दे का मामला है। आज तो बेपर्दा होके औरतें घूमती है, पता नहीं इसको मरने का ख्याल है कि नहीं है। बहरहाल, जब औरत हो या मर्द, मुर्दा है, उसको नहलाते हैं, कफन पहनाते हैं, उसके बाद जनाजे पे लिटा देते हैं। लोग मुंह खुला रखते हैं, कुछ देर के बाद बंद करते हैं। इधर लोग हल्ला करते हैं, इधर लोग शोर मचाते हैं कि लोगों जरा जल्दी करो दफनाने में, जरा जल्दी करो जनाजा की नमाज पढ़ाने में, हमें बहुत दूर जाना है, हमें फला काम करना है, मैं फला काम छोड़ के आया हूँ, मुझे जरा जल्दी करो। लेकिन मेरे दोस्तों, उस वक्त मैयत कहती है, हे लोगों तुम्हें जल्दी की पड़ी है, आज मेरे आखिरी सफर है, आज मैं घर भी छोड़ रहा हूँ, अपने औलाद को भी छोड़ रहा हूँ, अपने रिश्तेदार को भी छोड़ रहा हूँ, अपने मोहल्ले को भी छोड़ रहा हूँ, और तुम्हें जल्दी की पड़ी है, जरा मेरे बेटे को सामने लाओ, मेरी बेटी को सामने लाओ। आज मेरा बेटा बेटी, आज मेरी औलाद यतीम होने वाली है, जरा उसको मेरा चेहरा तो एक बार और देख लेने दो। कल के तारीख में जब मैं नहीं रहूंगा, ये मेरा बच्चा, ये मेरी औलाद है, ये मेरे बेटा और बेटी कल किसी
बारात में जाएंगे, कल किसी शादी में जाएंगे, लोग इसे यतीमी की नजर से देखेंगे, लोग इसे यतीम कह के पुकारेंगे। आज मुझे देख लेने दो, इसे भी देख लेने दो, आखिरी सफर शुरू हो रहा है। मेरे दोस्तों, अब वो घर से निकलता है, वो मैयत देखती है कि हाय अफसोस ये क्या हो गया। वो घर जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है, वो घर जिसके लिए मैंने मेहनत और मुशक्कत किया है, गर्मी सर्दी नहीं देखा है, सब कुछ बर्दाश्त करके घर को सजाया है, घर को संवारा है, लेकिन रूह जिस्म से निकली है, आंखें बंद हुई है, सांस रुकी है, तो सबसे पहला जो है बेवफा जो दुनिया में उसके साथ बेवफाई करने वाली शय है, तो उसका नाम घर है। उसका घर छूट रहा है, वो घर जिसको संवारने के लिए जिंदगी भर लगा दिया था, वो घर जिसको सजाने के लिए अपनी मेहनत और मुशक्कत से पूरी जिंदगी पूरी कुव्वत लगा दिया है, लेकिन जब घर छूट रहा है वो मैयत कहती है हाय अफसोस मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, अब जनाजे पे लेटा है, वो मैयत कह रही है ए लोगों मेरे साथ तुम चलते हो, जरा कान खोल के सुन लो, एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा आने वाला होगा कि लोग तुम्हारे चारों तरफ घेर लेंगे, तुम किसी के कंधे पर सवार हो जाओगे। उस वक्त तेरा जिस्म भी होगा, तेरे हाथ भी होंगे, तेरे पैर भी होंगे, तेरी आंख भी होगी, तेरे नाक भी होंगे, तेरे मुंह भी होंगे, तेरी जबान भी होगी। ना तू चल सकेगा, ना बोल सकेगा, ना देख सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। आज अफसोस है मुझे कि दुनिया एक धोखा है, धोखा जिसे जैसे मुझे धोखा दिया है ये दुनिया, ऐसे ही कल आपके साथ धोखा होने वाला है। अपने अमाल को संवार लो, अपने अच्छे अमाल कर लो, नेक किरदार को अपना लो। नमाज फजर नहीं पढ़ते हो, पढ़ लो, नमाज जोहर भी अदा कर लो, पंजगाना नमाज पढ़ लो, इसलिए कि कल तुम्हारे साथ ये घर छोड़ने वाला है, घर भी साथ छोड़ देगा, आल औलाद भी साथ छोड़ देंगे, कोई तुम्हारा मददगार नहीं होगा। आपका अगर मददगार कोई है तो आपका ईमान है, आपका अमल है। आप क्या करते हैं कि लोग उनको लेके कहां पहुंचते हैं? कब्रिस्तान। मैयत को कब्र में रख देते हैं, रखने के बाद लोग वहां से वापस होते हैं तो इंसान और जिन के अलावा जब इंसान को कब्र में रख देते हैं, वहां से वापस होते हैं तो दो फरिश्ते आते हैं जिनका नाम है मुनकर नकीर। नीली नीली आंखें लेकर के, भयानक शक्ल लेकर के, बड़ी खतरनाक शक्ल वो सूरत लेकर के, उनके मुंह में दांत इतने बड़े हैं जैसे बैल का सींग है, और जमीन को चीरते फाड़ते हुए कहाँ थे उसके कब्र में दाखिल होते हैं और सवाल करते हैं क्या मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? पहला सवाल होता है मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होता है माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। और तीसरा सवाल होता है माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, क्या कहा करते थे इस मर्द मोमिन के बारे में। मेरे दोस्तों, सवाल जब होगा तो पहला सवाल क्या होगा? मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि फला शख्स ने तुमसे पहले कब्र में आया था, उसने रब किसको बताया है, उस रब के बारे में तुम भी बताओ। नहीं, या आपसे या ये नहीं कहा जाएगा कि तुमसे कुछ दिन पहले फला आदमी कब्र में आया था, उसने अपना दीन क्या बताया है, तुम भी बताओ। नहीं, मौजूदा जमाने के बारे में सवाल होगा। मन रब्बो का, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा रब कौन है, किसको तुम रब कहता था। अगर ईमान वाला होगा तो क्या कहेगा? मेरा रब अल्लाह है, यही ना कहेगा। दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे बाप दादा तुमसे पहले कब्रिस्तान में आके लेटा है, तुमसे पहले वो इंतकाल किए हैं, उनसे सवाल और जवाब हो चुका है, जो दीन वो बताया था वही तुम बताओ। नहीं पूछा जाएगा।
بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، کس دین کو تم مانتے ہو۔ اگر ایمان والا ہے تو کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں۔ اب یہاں سوال دیکھیے، دو سوال ہے موجودہ زمانے کے تعلق سے، یعنی تم رب کس کو کہتے ہو وہ بتاؤ، تم دین کس کو مانتا تھا وہ بتاؤ، کس کو تم دین کہتے ہو وہ بتاؤ، مذہب کیا ہے تمہارا بتاؤ۔ لیکن تیسرا سوال ہوتا ہے کیا کہا کرتے تھے، یعنی اب جو کہو گے یہ نہیں مانا جائے گا، جیتے جی کیا کہتا تھا وہ بتاؤ۔ کیا کہا کرتے تھے تم اس مرد مومن کے بارے میں، یعنی اب جو تم کہو گے یہ نہیں مانا جائے گا، جو تم کہتے تھے زندگی میں، جو تم کہا کرتا تھا جیتے جی دنیا میں، وہ بتاؤ کیا کہتا تھا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، قبر میں سوال ہوتا ہے کیا کہتا تھا، اس تھا کا مطلب ہے کہ کوئی قبر میں اور بھی ہے۔ قبر میں کون ہے، تعداد کتنی ہے، 3۔ ایک کو تو ہم دفنا کے آئے ہیں واپس، 2 فرشتے قبر میں آئے، تعداد کتنی ہے، کتنے تعداد ہوئے، 3۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ کیا کہتا تھا، اس کا مطلب چوتھا بھی کوئی موجود ہے قبر میں، چوتھا کوئی موجود ہے اس قبر میں، تبھی تو پوچھا جاتا ہے کیا کہتا تھا اس مرد مومن کے بارے میں۔ اگر ایمان والا ہوگا تو کہے گا یہی تو میرا نبی، آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ اے فرشتوں تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا کہتا تھا، یہی تو نبی ہے جس پر میں نے ایمان لایا ہے، اور انہی کو دیکھنے کے لیے میں قبر کی دنیا میں آیا ہوں، یہی تو ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے۔ بات سمجھ گئے؟ قبر میں ایک مردے کو دفنا کے آئے، 2 فرشتے تشریف لائے، تعداد 3 کی ہے، لیکن سوال ہوتا ہے کیا کہتے تھے، کیا کہتا تھا، تو چوتھا اس قبر میں موجود ہے، تبھی تو پوچھا جا رہا ہے۔ تو وہ چوتھا کون ہے، وہی میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرے دوستو یہ ایمان والے لوگ جواب دیں گے، قبر میں سوال ہوگا، اور سوالوں کا جواب جو ہے صرف اور صرف ایمانوں پہ رکھا گیا، ایمان والے ہی دیں گے، وہاں کوئی بکواس نہیں چلے گا، وہاں جھوٹ بھی نہیں بول پائیں گے، اور سچ کبھی اس کا پالا پڑا ہی نہیں تو سچ بھی نہیں بتائیں گے۔ تو یہ ایمان والے ہی لوگ جواب دیں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، سب سے ہوگا نا، صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں، سب سے، اپنے سے بھی بیگانے سے بھی، سب سے ہوگا من ربو کا۔ کچھ لوگ کہیں گے ہائے ہائے افسوس میں نہیں جانتا، افسوس کیوں کرے گا وہ، جبکہ 40 سال کی زندگی گزارا ہے تو کسی کو تو رب کہا ہوگا، 40 سال کی زندگی دنیا میں گزارا ہے تو کسی کو تو اپنا مالک سمجھا ہوگا، تو فرشتہ تو یہی پوچھ رہا ہے کہ مالک کس کو کہتے ہو یہاں بتاؤ، لیکن وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ تو میرے دوستو فرشتے کہتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دھرم کیا ہے، وہ کہے گا افسوس نہیں جانتا۔ ابے 40 سال کی زندگی گزارا، 50 سال کی زندگی گزارا، تو ظالم کہہ کیوں نہیں دیتا ہے کہ میرا دین یہ ہے، میرا مذہب یہ ہے، میرا دھرم یہ ہے۔ فرشتے تو دین ہی کے بارے میں پوچھتے ہیں، دھرم ہی کے بارے میں پوچھتے ہیں، مذہب ہی کے بارے میں تو پوچھتے ہیں، تو جس دھرم کو جو مانا ہے اس کو بتا کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو بات صاف صاف سن لو کہ قبر کی دنیا میں سچائی کے علاوہ جھوٹ زبان پہ آئے گا ہی نہیں، اور سچائی سے کبھی پالا پڑا ہی نہیں، کوئی رشتہ تھا ہی نہیں سچائی سے، تو سچائی اس کے زبان پر آئے گا ہی نہیں۔ کون؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، وہ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ
तब तक फरिश्ते कहेंगे मा कुंत तकुलो फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, क्या कहता था इस मर्द मोमिन के बारे में। फिर हुजूर के बारे में पूछा जाएगा। पहला सवाल तो आसान था कि क्या है तुम्हारा रब, कौन है, जिसको मानते हो बता दो। दूसरा सवाल भी आसान है, तुम्हारा दीन क्या है, जिस मजहब को मानते हो अभी बता दो, मैं मान लूंगा कि तेरा मजहब ये है, तेरा दीन ये है और तेरा खुदा ये है। लेकिन फरिश्ते सवाल करते हैं क्या कहता था। ए लोगों, अभी जो कहोगे नहीं माना जाएगा। जो जीते जी कहता था जिंदगी में दुनिया में रह के, वो बताओ तुम नबी को क्या कहता था। तो ये लोग कहेंगे अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। कौन कहेंगे? जिसके पास ईमान नहीं होगा। जब मैंने इस सवाल को एक जगह तकरीर किया था तो कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोग हैं कि इनकार कर देते हैं कि कब्र में हुजूर तशरीफ़ नहीं लाते हैं। अब इस तकरीर को मैंने एक जगह किया था कि इसका मतलब क्या है कि इस मर्द के बारे में, तो उन्होंने कहा क्या कि हुजूर तशरीफ़ नहीं लाते हैं, बल्कि फरिश्ते जो है हुजूर की तस्वीर, हुजूर की फ़ोटो लेके आते हैं। अच्छा, अगर यही मान लिया जाए कुछ देर के लिए, मानिएगा नहीं ना तो ईमान ख़त्म हो जाएगा। बस समझाने के लिए समझिए। अगर हुजूर की तस्वीर लेके फरिश्ते आते हैं और उन लोगों का कहना है कि एक ही वक्त में अगर 50 जगह इंसान कब्र में दाखिल हुआ है, कब्र में पहुंचा है, तो हुजूर 50 जगह कैसे जाएंगे। तो उनसे आप गाली गलौज मत कीजिए, उनसे पूछिए कि जवाब देने वाले फरिश्ते कितने हैं। जवाब देने वाले फरिश्ते सिर्फ, और सवाल करने वाले फरिश्ते सिर्फ और सिर्फ 2 है। अब एक आदमी इंतकाल किया मटियारा में, एक आदमी इंतकाल किया आरा में, एक आदमी इंतकाल किया पटना में, एक आदमी इंतकाल किया फ्रांस में, दुबई में, अलग अलग देश में, और एक ही टाइम में सबको कब्र के हवाले किया गया है। अब मुझे बताओ, फरिश्ते 2 हैं, सवाल करने वाले 2 हैं, तो एक ही वक्त में हर कब्र में ये फरिश्ते पहुंचते हैं, तो किसी को हैरत नहीं होती है। लेकिन अगर मेरे आका पहुंच जाए, नबियों के नबी पहुंच जाए, वो नबी जिनके तलवे मुबारक पर सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन फरिश्तों का सरदार होकर अपने नूरानी आंख को मेरे नबी के तलवे मुबारक पर मलना शुरू किया है, वो नबी तमाम नबियों के नबी है, वो नबी जो तमाम रसूलों के रसूल है, वो हर कब्र में एक ही वक्त में पहुंच जाए तो हैरत क्या। जब एक ही वक्त में हर कब्र में पहुंच सकते हैं तो एक ही वक्त में हर मिलाद में, हर जलसा में भी आ सकते हैं और आते हैं। ये हमारा अकीदा है कि हर मिलाद में हुजूर तशरीफ लाते हैं, हर कब्र में हुजूर तशरीफ लाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब उससे पूछो कि जब तुम कहते हो कि नबी की तस्वीर लेके आते हैं फरिश्ते, तो मेरे दोस्तों, तो मर्द अगर तस्वीर को मर्द मान लिया जाए तो फरिश्ते झूठे हो गए, क्योंकि मर्द के लिए जिस्म होना जरूरी है। पानी की तस्वीर पानी नहीं है, वरना किसी प्यासे के सामने पानी की तस्वीर रख दो और कहो कि पानी पी लो, प्यास बुझ जाएगी, तो बुझ सकती है प्यास? नहीं, तस्वीर से प्यास नहीं बुझ सकती है। अगर किसी भूखे इंसान के सामने दस्तरखान लगा दो, वो दस्तरखान जिसमें खाने की फोटो है, गाजर की फोटो है, हलवा बिरयानी की फोटो है, उस दस्तरखान को बिछा दो टेबल पर और चारों तरफ से आदमी को बैठा दो और कहो भाइयों आते जाओ खाते जाओ। अब खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, देग चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, खाना और बिरयानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस
इसी फोटो से खाते जाओ और आते जाओ खाते जाओ। ऐ मेरे दोस्तों, अगर फोटो से खाना खाया जाता, फोटो देखकर खाने की तस्वीर देख के पेट भर जाता, तो हिंदुस्तान का दिल दिल्ली जब जल रहा था, दूसरे दिन उसकी तस्वीर में एक बड़ी सी फोटो आई थी और उसमें आग की शोले लपका मार रही थी। वो आग की शोले देखकर दिल दहल उठा था। लेकिन मैंने क्या देखा कि कुछ ही देर में वो लोग उस तस्वीर को उठाकर, उस पेपर को उठाकर अपने जेब में रख दिया है। अब उसका जेब जल नहीं रहा है, उसका बदन जल नहीं रहा है, उसका कपड़ा जल नहीं रहा है। तो पता क्या चला, आग की तस्वीर आग नहीं है, पानी की तस्वीर पानी नहीं है, खाना की तस्वीर खाना नहीं है, तो नबी की तस्वीर नबी नहीं है। अब फरिश्ते सवाल करते हैं, मा कुंता तकुलो फी हक़्क़ि हाज़िर रसूल, क्या कहता था इस मर्द मोमिन के बारे में? अगर तस्वीर दिखाया जाता तो तस्वीर दिखाने वाला, अगर तस्वीर दिखाया जाता तो जब सवाल होता है क्या कहते थे इस मर्द के बारे में, तो मोमिन जवाब देते हैं, हाज़ा नबीयुना, ये तो मेरा नबी है, अल्लाह का रसूल है, इन पर मैं ईमान लाया हूँ, इन्हीं का कलमा पढ़ के, इन्हीं की शरीयत को अपना करके मैं मुसलमान बना हूं और अल्लाह को पहचाना हूं और इनकी शरीयत को अपनाया हूं। ऐ मेरे दोस्तों, अगर फोटो देख के कह दे कब्र वाले हाज़ा नबीयोना, तब तो फरिश्ते झूठे हो गए और जवाब देने वाला मुर्दा क्या हुआ? काफिर हो गया। क्या हुआ? काफिर हो गया। क्यों? कि फोटो को नबी मानना कुफ्र है। किसी फोटो को देखकर कोई नबी नहीं मान सकता है। नबी को मानने के लिए जिस्म होना जरूरी है। और फरिश्ते कहते हैं, क्या कहता था इस मर्द के बारे में? अगर फोटो दिखाया जाता तो फोटो दिखा करके जब वो कब्र वाले जवाब देते हैं हाज़ा नबीयोना, ये तो मेरा नबी है, तो जब नबी उन्होंने कहा तो फरिश्ते भी झूठे हो गए और जवाब देने वाला काफिर हो गया। तो मेरे दोस्तों, वह फरिश्ते जो है ईमान को जांचने के लिए सवाल करते हैं, मा कुंता तकुलो फी हक़्क़ि हाज़िर रसूल, क्या कहता था इस मर्द के बारे में? अगर ईमान वाला होगा तो कहेगा हाज़ा नबीयुना, ये मेरा नबी है। यहाँ फरिश्ते ईमान की जांच कर रहे हैं और वहाबी जो है मुर्दे को काफिर बनाने में लगा है। तो बचिए ऐसे लोगों से। तस्वीर देख के नबी नहीं माना जा सकता। नबी की तस्वीर देख के नहीं, बल्कि हुजूर माँ खुद तशरीफ लाते हैं। फरिश्ते कहते हैं हाज़ा नबीयुना, ये क्या कहता था इस मर्द के बारे में? फरिश्ते कहते हैं, तो जवाब देने वाला कहता है यही तो मेरा नबी है। सबके साथ यही सवाल होगा, जवाब होगा। लेकिन ईमान वालों के साथ जवाब भी है और कुफ्र वालों के साथ जवाब नहीं है, सिर्फ सवाल है। सवाल होगा, कुफ्र कहेगा अफसोस अफसोस अफसोस, कुछ नहीं जानता। ईमान वाला कहेगा वो तो मेरा नबी है, वो तो मेरा रसूल है, उन्हीं का कलमा पढ़ के मैं मुसलमान बना। तो मेरे दोस्तों, जब 3 सवाल का जवाब दे देंगे तो फरिश्ते क्या कहेंगे कि फिर से मर जा, जैसे तू दुनिया में मरा था ऐसे ही मर जा। कहेंगे नहीं, बल्कि कहेंगे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। पहले सब की दुल्हन, अब पहले सब की दुल्हन कैसे सोती है? अक्ल तो कहती है कि जब एक दुल्हन अपने मायके छोड़कर ससुराल जाती है तो माँ की मोहब्बत एक तरफ सताती है, बाप की शफकत एक तरफ सताता है, भाई की प्यार एक तरफ सताते हैं, पड़ोस की प्यार एक तरफ सताते हैं, मोहल्ले की गलियां, सहेलियां, खानदान, एक एक बात उनके जहन में आती है। अब बताओ वो दुल्हन पहले सब यानी पहली रात अपने ससुराल जाके कैसे सोती होगी? और यहाँ फरिश्ते कहते हैं सो जा
जैसे पहली सब की दुल्हन पहली रात की दुल्हन सोती है वैसे तू भी सो जा। तो मेरे दोस्तों यहाँ दुल्हन की बात इसलिए कहा गया कि एक दुल्हन जब घर से निकलती है पहला दिन होता है, पहली रात होती है, और जब घर से निकलती है माँ की मोहब्बत सताती है, बाप का शफकत सताता है, भाई की प्यार एक तरफ है, बहन की मोहब्बत एक तरफ है, पड़ोस के लोग एक तरफ चाहने वाले हैं, खानदान की मोहब्बत है, खानदान के लोग चाहने वाले हैं, लेकिन सबको छोड़कर वो कहाँ गई? ससुराल गई है। इधर मुर्दा घर से निकलता है, घर भी छूटता है, औलाद भी छोड़ते हैं, माँ बाप की मोहब्बत को भी छोड़ देते हैं, सारे रिश्तेदार दम तोड़ देते हैं, तब जाके कब्र में पहुंचते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं कब? जब तीनों सवाल के जवाब दे देते हैं तब कहते हैं सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अब दुल्हन जब ससुराल गई है तो रात तो सोचते सोचते गुजरा, और दिल में ख्याल आया कि आज नहीं तो कल मेरे बाप ज़रूर आएंगे, मेरे भाई आएंगे, मेरे ख़ानदान के लोग आएंगे, तो खाली हाथ नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ ले करके आएंगे। यही होता है ना। अब यहाँ फरिश्ते कहते हैं सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अब ये सोने वाला कैसे सोएगा? अब इसके दिल में ख्याल है कि आज नहीं तो कल मेरे घर वाले मेरे कब्र में आएंगे, और आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ ले करके आएंगे। अगर 3 दिन में आएंगे तो तीजा कहेंगे, 4 दिन में आएंगे तो चहरुम कहेंगे, 10 दिन में आएंगे तो दसवां कहेंगे, 20 दिन पर वो आएंगे तो 20वां कहेंगे, 40 दिन पर आएंगे तो 40वां कहेंगे, और साल में एक बार आएंगे तो सालाना कहेंगे। यानी ये भी उम्मीद लेके सो रहा है कि मेरे घर वाले आएंगे, कुरान की तिलावत करके आएंगे, नजरो नियाज करके आएंगे, आका के मिलाद को सजा के आएंगे, और मेरे नाम पे आके यहाँ बख्श देंगे, अल्लाह उसकी जजा मुझे अता फरमाएगा। इसलिए कहा गया कि सो जैसे पहले सबकी दुल्हन सोती है। अब ये सोएंगे लेकिन इंतज़ार में रहेंगे कौन आता है, कौन आता है। तो मेरे दोस्तों आप हम सब जो भी हम सब के ख़ानदान में लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके नाम पर इसाले सवाब करते रहिए, और उनके कब्र में जुमा को जाते रहिए, ताकि उनको भी इसाले सवाब के तौर पर कुछ ना कुछ मिलते रहे और याद भी ताज़ा रहे। तो मेरे दोस्तों आज जो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, जिस मरहूम के नाम पर अल्लाह ताला उस मरहूम के कब्र में रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए, और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला वो बंदा तेरा है, चाहे वो दुनिया में जैसे ही ज़िंदगी गुजारा, लेकिन बंदा तो तेरा है, और तू रऊफ़ुर रहीम है मौला, तू अपने बंदे की ख़ता को माफ़ फरमा दे। मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, यानी एक ना एक दिन जाना है। तभी तो किसी शायर ने कहा है एक ये जहाँ एक वो जहाँ, इन दो जहाँ में है, एक ये जहाँ एक वो जहाँ, इन दो जहाँ के दरमियाँ है फैसला सिर्फ एक सांस की। एक ये जहाँ एक वो जहाँ, इन दोनों की एक ये जहाँ एक वो जहाँ, और इन दो जहाँ के दरमियाँ है फैसला एक सांस की। जो चल रही है तो ये जहाँ, ना चले तो वो जहाँ। तो फिर इन सांसों की माला में मोती पर लो दुरूद के, फिर हो ये जहाँ या वो जहाँ, साथ होंगे हबीबे ताजदारे दो जहाँ। तो मेरे दोस्तों इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व तूबु इलैह। सब मिलके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह।